में आए थे सर्टिफिकेशन का। नहीं सर, फिर बोलने के लिए वो बोल देंगे कि आए थे क्लास में बैठे थे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं ये दुनिया। हाँ वो। आपको अपने मतलब की चीज़ पहले निकालनी है, फिर हाँ उसके वही बाद जाना इसलिए। है। समझे? ठीक है सर, लेकिन कैसे तक वो करना कैसे सर। सर तो आज काउंसिल में कहाँ आए थे? मिक्सामो है ना? मिक्सामो। मैक्सिमो मैक्सिमो सोच रहा था मैं, वो मिक्सामो है। ऑलरेडी डला हुआ है। अनरैप है, लेकिन टेक्सचर नहीं डाले, क्योंकि टेक्सचर तो हम कभी भी बाद में भी डाल सकते हैं। अनरैप कर लिया हमने। इसमें आइडल एनिमेशन चाहिए ना हमको। फिंगर अच्छी लग रही मुझे। गड़बड़ाती है ना, लेकिन जब तरीके से बनाओ ना दिक्कत नहीं होता। नहीं, मैं बोल रहा तरीके से बनाओ तो। जैसे तुमको ये दिख रहा है ना, ये जुड़ा नहीं है। तो जुड़ा नहीं है तो ज्योमेट्री में डिफॉर्मेशन का चांसेस नहीं है। ये भी जुड़ा नहीं है आपस में, अलग है। ये भी जुड़ा नहीं है, केवल उतना ही सेक्शन है बस। तो गेमिंग में ना मॉड्यूलेशन वहीं दो जहाँ ज़रूरत है ना। तो ये अच्छा वो दिख रहा है। मुझे लगा नहीं था कि ये उतना अच्छा उसका हाँ पकड़ेगा, बट पकड़ लिया उसने। और कैरेक्टर आर्म स्पेस वगैरह जो है वो तो अपन जानते ही हैं कि बढ़ाना ये वो करना, तुम देखा ही होगा। आइडल 30 FPS ही रखते, वैसे 24 FPS मांगता है। 40 में किए थे। चलो मैं 30। यहाँ एडिट करने का ऑप्शन नहीं देता, तो तुम वहीं से करे हो। मैक्स में 40 FPS के हूँ। क्यों? जब मैं वो तो बिल्कुल करेक्ट बात है। विथ स्किन और विदाउट स्किन। विथ स्किन लेना चाहिए। तुम लोग देखो, तुम्हें सीखने के लिए तो बिल्कुल करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑन अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, और प्रोबेबली फिर से किसी एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पे जाते हैं। और स्टार्टर कंटेंट ऑन नहीं रखते हैं, या रख दूँ क्या? शुरुआती स्टार्टर कंटेंट रहना चाहिए। एंड लेट इट बी, आई डू नॉट वांट दैट मैप। Rishabh, actually, I'm sure he won't be coming for a week because Ishika भी अभी नहीं आ रही है। So there is no other reason I am finding right now, because I don't know. He didn't told me anything, so I have no idea. ठीक, तो हमारे पास एक आइडल है, वॉकिंग है, रनिंग एनिमेशन है, दैट वी कैन सी in our Unreal character OBJ. We have anim and standing, run, forward, walking down. And again we'll go at this portion and we'll go to desktop downloads.
Yeah, recording is on. We're taking the record since 5 minutes. So इसको कट करते हैं and we'll put it on our folder. This will be idle, standing, run, forward and walking. तीन options हमारे पास है. Now let's get back to our Unreal, and we've got Unreal thing, right? Content के अंदर पे जाएंगे, दो फोल्डर बनाएंगे, where the character asset underscore assets, and we'll create another folder, and that will be your character underscore blueprints, right? BP. Character BP will contain a character class. This will be hero, right? And character asset will contain the animations. So we can import everything, right? But what we are going to do in here, I'm going to import the idle one, right? That is my idle animation. And skeleton mesh has to be selected, import the animation, right? And exported time, and what will be the FPS could be frame import range, use default sample rate. ठीक है, that is not applicable right now. I don't think else is needed. Let's go to import all. We'll get walking, right? Now it will only ask for the smoothing group from the FBX scene which we had earlier. We actually applied a smoothing group over in that model in our max. That is not a modifier we had applied, but it's an option which we had turned on for the smoothing. So that is the reason why it is asking that there is no smoothing group available right now. So the object is pretty much raw. So I'll just select this object, and this will be my idle object. As you can see, it's in the wireframe. As you can see, everything is turned to be right? Everything is triangulated, and now we've already got the animation of the idle one. We got that. Now again, what we are going to do, we're gonna import the standing or probably walking will be the next one we are going to import, and this time we're gonna select the idle skeleton which is currently over here. That is what we are gonna select, and then turn off the right. We'll remove that, but animation file will get, and not the mesh file, or not the skeletal file, right? So again we got everything there. Import skeleton is there, so let's go and import. We'll get only the animation. Again, let's go right over here and take the standing, run forward. Skeleton mesh has to be, oh sorry, selected. Idle has to be selection, and everything is like that. So now as you can see, this one will be something like this: a crouch run, walking one, right? There's no gun selected, and the idle one, right? That is what we are getting right over here. Now we need, in the character blueprint, we need to connect the character. So the mesh of the character has to be skeleton mesh. It is the idle skeleton. We got our idle skeleton right over here. And what is the direction? Direction is that, so we'll go by 90-degree, and we'll increase the size or decrease the size of capsule. So I'll be giving the capsule a lesser amount of radius. Probably this will be the amount of radius, and okay,
So now what we are going to do, we're gonna, the capsule is not gonna be shifting, it's not gonna shift there, so it will take something like that, right? So we can scale it a bit. Yeah, that is the exact. पांच पेड़ हो गया है, तो डार्क ब्लैक ओक बनाना है, उसके बाद फिर हो फैला जाएगा, दूंगा और बुशेस बनाने हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ आज 3 दिन हो गया, 3 दिन और टाइम दिया हूँ मॉडलिंग का, फिर कंप्लीट कर कंप्लीट हो लेता गया, हूँ। फिर हम लोग मैं तो बोल लाइटिंग रहा में। जल्दी हो जाएगा। जितना हो सके उतना जल्दी कवर अप करें। Okay, so now we've got the geometry and और ऐसा लगेगा। ठीक है, we got the geometry right over here. Bye bye, take care. uh, कॉल करेगा निकलने टाइम। idle है, right? We haven't gone for animation yet because there is no animation blueprint we had created, right? जिसमें हमें blend space वगैरह दोनों चाहिए होगी। arms as in it doesn't matter because when it's going to be in animation form, the collision will be count only for this one. If I had to create the arm, then I have to create another capsule component only for the arm, right? Exactly, there's a sphere collision there, right? So currently we actually gonna the capsule component is actually going to calculate about your position. It is only for that. This is not gonna concern about the hands, and we can see in the physical. Let's compile this one, and in the character skeleton mesh, we can go by physical asset. As you can see, there's a collision there, which is actually going to count there. So if I'm gonna apply the simulation, ragdoll is applied. Though it seems good because everything is now connected, and it's what we had done is good. I reckon that we had done a pretty good job with our geometry because it is not showing any form of deformity, right? So what we're going to do, we're going to go for the skeleton mesh. We had already seen everything. The animation is there, but there is no attachment of the animation along with our, only this one is attached, and oh, these ones are there, which we can see, and the walking animation is also there. So you can see all of the animations are present there in our assets. Now I'm going to do what, we're going to go for the character BP. We know that we need some animation blueprints. So animation blueprints, idle skeleton, create, and this will be hero anime, right? Yeah, hero ABP, NMBP or something, I don't know, probably. Okay, and then again we're gonna create another, go for animation and blind space 1D. For a time being, we're gonna work on blend space 1D, and then we're gonna add our normal blend space, PSP. Right, so now we have the blend space, right, and we have got all these three informations. I'm gonna change its name to horizontal. I'll be probably be speed velocity or something, so that I could understand that this thing is actually denoted to the speed of the character. And 300, probably 300. Why? Because I wanted to give a lot of animation within the 300 velocity. So if I'm going for 0 to 150, the walk will be separate. If I'm gonna go for like 300, above 300, then it will be running, something like that. So idle animation has to be put over here,
Now it is the idle point. This is your walking point. The connection is there, and standing run will be over here. The connection is now. If I am going to add some value over here, currently there is no value available which is gonna play them. If I'm gonna select that, Just put the person and hmm? Maybe I you have to put the cursor on the viewport, then hmm. press Alt. On this one, yeah, if I'm gonna press Alt, Or Control. or probably yeah, Control will be the one which actually is gonna help me out for the blend space, right? So now as you can see, I'm at idle, then it is checking there. So if I'm gonna play that, and I'll go by right, and if I'm gonna play this one, it will be changed. So it automatically blends itself within the game. So now it's 300 will be the division, velocity will be the name, and done. Right. Now what we need to do, we need to go to our animation blueprint, where we have to tell the character that Which animation is going to play now? play right on this portion. So we're gonna select that, compile. So currently it's at right. If I'm gonna press 150, this will be there, and if I'm gonna give a 300 or something, we'll compile that, and it will be this. So we can see that it is currently running at this quite a nice speed. Now I'm gonna take a variable. I'm gonna name it velocity. It will be a float variable. It's gonna be get velocity. We're gonna turn this one over here. Now we need to shift this velocity over at our graph. So this is the continuous update event, where you will be checking continuously that what will be the actual position, right? So try anim instance target cell. We need velocity over here, right? So get reference for the velocity. Right, this is the value which is going to be there. और इवेंट ग्राफ में हमको एनिमेशन में तो वैसे भी हमने ऑलरेडी यहाँ वैल्यू डाल दी है. इस वेलोसिटी को मुझे बदलना होगा इवेंट ग्राफ में. इवेंट ब्लूप्रिंट अपडेट एनिमेशन जब आता है तो इसमें मुझे कैरेक्टर की वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी स्पीड जो है ना, वो कैलकुलेट करनी है. वो मुझे कहाँ मिलेगी एक्चुअल वैल्यू वेलोसिटी स्पीड? तो गेट वेलोसिटी तो यहाँ से मैंने ले आया है ना, बट ये वेलोसिटी है या वो वाली? ये एक्चुअली में वेलोसिटी है, स्पीड है इसकी, ये वाली वैल्यू नहीं है. नहीं नहीं नहीं, गेट वैल्यू ही चाहिए, क्योंकि ये इसकी स्पीड काउंट करेगा. अभी मैं पॉन की स्पीड को निकाल रहा हूँ. हाँ बोलिए. ठीक है, ये तो अच्छा है. गुड गुड. साइड से दिखाओ मुझे. एडजस्ट नहीं है ना? थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, उसमें प्रोस्पेक्टिव में दिखाओ. ये है ना सामने. सेलेक्ट करो, Z दबाओ.
साइड से नोज उस तरफ से दिखाओ मुझे। थोड़ा सा कर्व आना चाहिए ना नोज में। हाँ, नोज में कर्व चाहिए। हाँ, ये बीच वाला पोर्शन जो है ना वो थोड़ा सा आगे जाएगा। और मैं ये पूछ रही थी, अब मैं इसको क्या करूँ, मतलब ये तो हो गया। F4 दबाओ। हाँ, देखो ये वाला जो लिप है ना ऊपर वाला, शो मी, प्रेस 1। अब ये निकलेगा यहाँ से एज, ये लूप जाएगा और इधर जुड़ेगा, ठीक है। ये मतलब लूप ये यहीं से यहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये वाले को ब्रेक करेंगे बाद में, जब एक बार जोड़ दोगे ना तो फिर यहाँ से ब्रेक कर देना। ब्रेक करने से क्या होगा, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो फिर हमारा पूरा होंठ जो है वो अलग अलग रह जाएगा, ओके ओके मैं समझ। ठीक है। तो ये दोनों अलग हो जाएगा। ये इसको पूरा यहाँ से ऐसे कवर करते हुए बस नीचे का पोर्शन को फिर क्या मतलब ये वाला सिंपली उसी के बगल से जाके इससे जुड़ जाएगा। इसको ऐसा नहीं करना ना कि इसको यहाँ से जाके ऐसे नहीं, कर सकते हो इसको, ये वाली जो दिख रहा है ना इसको ले जाके इससे जोड़ दो। यहाँ से जॉइन करके फिर यहाँ से ऐसे हम्म, इसको वो वाला ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ जाएगा, खत्म। यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट। वेलकम। हाँ, सो हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, वेलोसिटी पकड़ रहे थे। अभी वेलोसिटी हमारी जो हीरो एनिमे है ना, जो कैरेक्टर है हीरो, ये वाली वेलोसिटी नहीं है वो, ये वेलोसिटी अलग वेलोसिटी। एज यू कैन सी इसका v छोटा है, इसका v बड़ा है, तो ये वेलोसिटी एक्चुअली उसकी स्पीड है। तो ये जो वेलोसिटी है टारगेट की, ये जाएगी कहाँ, इसके अंदर जो तुम बोल रहे थे सेट वेलोसिटी करने के लिए, ठीक। यहाँ पे ये स्प्लिट स्क्रीन है, तो ये रिकम्बाइन करेंगे इसको और गेट वेक्टर लेना पड़ेगा, वेक्टर लेंथ लेना पड़ेगा। वेक्टर लेंथ क्या करता है, वेक्टर वैल्यू लेता है और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो नाउ वी हैव द वेक्टर वैल्यू। अब यहाँ से हमें इधर कैलकुलेट कराना होगा, ठीक। अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, वेक्टर लेंथ सेट वेलोसिटी, और ये वैल्यू इसके आगे आई थिंक अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करूँ और कैरेक्टर की स्पीड यहाँ से बढ़ानी होगी ना हमको, तो गेट वैल्यू में चलो चेक करने के लिए व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड सम वैल्यूज ओवर हियर, क्योंकि अभी तो वो चल नहीं रहा है ना। तो उसकी वैल्यू देखने के लिए मुझे एक ऐड चाहिए होगा। कांस्टेंट नहीं है ना, हाँ हाँ। अब देखो 0 to 300 जो वैल्यू जा रही है वो कनेक्ट कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, इसके अंदर कनेक्ट हो गई 0 to 3। अब ये जो वेलोसिटी दिख रहा है, इस वेलोसिटी पे आपको बढ़ाना है ना। अब आपकी ये वेलोसिटी जो है वो x वो वाली है, ठीक, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वही है आई थिंक। अब अगर जब कैरेक्टर मूव करेगा, है ना, जब कैरेक्टर मूव करेगा तब उसकी वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड वैल्यू बढ़ेगी। जब स्पीड वैल्यू बढ़ेगी तो वही वैल्यू कन्वर्ट होकर वेक्टर लेंथ में जाएगी, वही कन्वर्ट होकर वेलोसिटी में जाएगी, वही जाएगी एनिमेशन के अंदर, ठीक। अब अभी हमने इसको ट्रिगर तो कर दिया है कि ये रेगुलर चेक करता रहे, लेकिन यहाँ से कहाँ वैल्यू जाएगी पहले देखते हैं। इसको रन करके विल कंपाइल दैट, सेव इट, and we'll start with our player start because we're not gonna take any more chances with direct character, ठीक। player start default by default I think hero ही होगा because there is no, but फिर भी game mode अभी नहीं है, modes and controls, ठीक।
अब इसके अंदर ब्लूप्रिंट में पहले गेम मोड डालते हैं और इसको देंगे फाइंड एंड सर्च। ऐसा नाम क्यों? क्योंकि हमारा गेम जो होगा वो इट्स मोर अबाउट फाइंडिंग एंड सर्चिंग, है ना, उसके हिसाब से गेम बना रहे हैं। सो हमारा जो फाइंड एंड सर्च मोड है इसमें डिफ़ॉल्ट पॉन क्लास क्या होगा? डिफ़ॉल्ट पॉन क्लास होगा हीरो, राइट? ये हो गया हमारा, और बाकी सब सेशन वैसे ही रहेगा। सो विल कंपाइल एंड सेव एंड देन विल गो राइट ओवर द प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे दे दें। अभी फ़िलहाल हमने वो इनपुट वगैरह का कुछ भी नहीं दिया है ना? तो इनपुट में आ जाते हैं सबसे पहले, और एक्सेस मैपिंग में आ जाते हैं, और कितने एक्सेस लगेंगे हमें, है ना? दो एक्सेस लगेंगे, राइट, और यहाँ पे दो लगेंगे। ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड। तो इसको हम करेंगे मूव अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर बैक, ठीक, मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड, ए एन डी सॉरी डब्लू और एस, एस डब्लू जो होगा वो क्या होगा? एस जो है वो माइनस होगा, माइनस वैल्यू होगा। ये जो होगा ये क्या होगा? साइड मूव, साइड लेफ्ट राइट, एल अंडरस्कोर आर, मूव एल आर, और ये जो होगा वो ए होगा, ये होगा डी। ए जो है वो माइनस होगा, है ना, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, डी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू। करंटली नॉट एडिंग अवर माउस, अभी कंट्रोल नहीं ऐड करते, विल सी अबाउट दैट। और मोड्स में जाएंगे, और मोड्स में जाके हमारा गेम मोड जो है डिफ़ॉल्ट गेम मोड फाइंड एंड सर्च सेलेक्ट कर देंगे। नाउ लेट्स प्ले। So now as you can see that डेफिनेटली होना ही था, क्योंकि हमारे पास कैमरा कंट्रोल हमने ऐड नहीं किया है। ओपन ब्लूप्रिंट और हीरो 3D व्यू पोर्ट विल ऐड a camera, will add a camera, right? So स्प्रिंग हैंडल देख लेते हैं, स्प्रिंग हैंडल कहाँ है? स्प्रिंग आर्म ये है, और इसी को सेलेक्ट करके ऐड कर देंगे तो कैमरा उसी के अंदर आ जाएगा, कैमरा उसके साथ आ गया, राइट। विल बी बोथ ऑफ दिस थिंग्स विल बी सेपरेटेड। और बस ये है कि थोड़ा सा हम स्प्रिंग आर्म को सेलेक्ट करके थोड़ा इसको ऐसा कर देंगे, ठीक। विल कॉपी दैट, सेव, and then we'll take it up, so it will be somewhat like this, and now everything is at stance, सब चीज़ खड़े हुए स्टांस में है। यहाँ पे हमने एनिमेशन सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हमारा इधर जाएंगे और विल सेलेक्ट एक मिनट, एनिमेशन ब्लूप्रिंट सेलेक्ट और हीरो एनएमवीपी। सो नाउ एज यू कैन सी मेरा कैरेक्टर जो है वो इधर आ रहा है। एनएमवीपी के जितने भी वैल्यूज़ हैं वो -90 पे सेट करना होगा, क्योंकि वो चलेंगे सब जगह पे, उनको फ्लिप करना होगा। ये इसलिए हुआ है क्योंकि शायद मैंने व्यू पोर्ट में चेक नहीं किया था मैक्स में जब निकालते समय, तो मुझे इसकी कौन सा वैल्यू फोर्स एक्स एक्सिस मुझे ऑन करना था इंपोर्ट करते वक्त, हमने एक्स एक्सिस वैल्यू इंपोर्ट नहीं किया था, फोर्स एक्स एंड वाई जो था वो। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल टेक इट अप राइट ओवर हियर, एंड नाउ ये तो बराबर आ रहा है। नाउ अब हमें क्या करना होगा? विल हैव टू ऐड ऑन द इवेंट ग्राफ, हम ऐड करेंगे इफ एक्सेस इवेंट। फटाफट हम एक मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला बना लेते हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे? इनपुट मूवमेंट, राइट,
गेट मूवमेंट या ऐड इनपुट कहाँ गया, ऐड मूवमेंट इनपुट, ये करेंगे। डायरेक्शन एक्सेस वैल्यू विल बी स्केलेबल, और ये डायरेक्शन जो है ये हमें कैसा चाहिए है, गेट फॉरवर्ड वेक्टर चाहिए होगा। तो गेट फॉरवर्ड वेक्टर, अभी तो पहले डायरेक्ट डालते जा रहे हैं ना, रिवर्स चले जा रहे हैं हम। अब क्या चाहिए होगा, रोटेटर, जो रोटेटर पे आएगा वैल्यू, तो यू नीड टू मेक रोटेटर, है ना। तो मेक रोटेटर चाहिए होगा, मेक रोटेटर, ये वैल्यू इधर आ गई। सो ब्रेक करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपको यहाँ पे एक्स वाई और जेड वैल्यू मिल रही है ना। और ये तीनों वैल्यू कहाँ से आ रही है हमको, डायरेक्शन यहाँ से वैल्यू आ रही है, और W प्रेस करने पर, ये तो W प्रेस करने पर इसको मूव फॉरवर्ड होना चाहिए, स्केलेबल वैल्यू 1.0 है, ठीक है। अभी यहाँ से एक्स वाई जेड, ये तो हम लोग डायरेक्शन दे रहे थे, जो उसका था यॉ और पिच का रोल का वैल्यू थी ना, तो ये तो वर्ल्ड डायरेक्शन मिलेगा। स्पीड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि 1.0 के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। नाउ देयर इज एन इशू, जो देख रहे हो कि एनिमेशन जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रहा है ना। तो हम जाएंगे ब्लेंड स्पेस में, और यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर नहीं होगा ना, वेट स्पीड नहीं, यहाँ पे वैल्यू जो है ना उस 600 के पार कर देंगे, है ना। और इसको आखिरी, इसको बीच में, ठीक। सो नाउ विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मूव करने के लिए। सो अगर आप अब इसको मूव करोगे, बहुत जल्दी वैल्यू पहुंच रही है। कैमरा कंट्रोल्स, मैक्स एक्सेलरेशन विल बी लाइक 2000, तो ये जाएगा कितना, 635 समथिंग। और नहीं, 600 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, लेकिन अभी हमने 600 वहाँ पे दिया है करके, हम उससे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, लेकिन कितनी बढ़नी चाहिए वो हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फ्रिक्शन फैक्टर इतना है, क्राउज्ड हाफ हाइट ठीक है, मास 100 है, वॉकिंग एनिमेशन चल रहा है, डिफॉल्ट लैंड मूवमेंट जो है वो वॉकिंग चल रहा है, स्विमिंग के लिए अलग है, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना देर में बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो हमको देखना है, कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो यहाँ बताएगा, है ना, कि एक बार आपने दबाया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। स्टेप हाइट 4.0, वॉकेबल 4 फ्लोर, मैक्स वॉक स्पीड इज 600 cms, ये बहुत ज़्यादा है। मैक्स वॉक स्पीड क्राउड 300 है, ठीक है, मैक्स वॉक स्पीड ये है, तो इसलिए अगर मैं इसको अभी प्ले करूँगा, एक बार में दौड़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि मैक्स स्पीड जो है वो 600 ही है, इसको 60 कर दो, बढ़ेगा नहीं, पॉज हो गया वो, है ना। तो इसको 600 तो करना ही पड़ेगा, इसकी ग्रेजुअल वैल्यू जो बढ़ेगी ना उसको कम करना है हमको। मिनिमम स्पीड क्राउच ठीक है, नहीं तो वो 100 ऑलरेडी डला है, लेकिन आपकी वेलोसिटी बढ़, एक बार में W दबाने पर वेलोसिटी सीधा 600 पहुंच रही है,
हाँ तो हम कूद जा रहे हैं उससे बाहर, तो उसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा कि ये वैल्यूज जो है वो बढ़ती है, वो हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। लॉगिंग में Q100 होनी चाहिए फिर। धीरे धीरे बढ़े, मतलब वो चीज़ जो है ग्रेजुअली बढ़ती जाए। अभी क्या है वो इस वैल्यू की जो मैक्स स्टेप हाइट है वो वैल्यू इसमें होगा, क्योंकि W दबाओगे और फटाक से वो बढ़ जाएगा ना आगे। तो 100 है। स्पीड जो है अगर मैं इसकी 100 कर दूं, 150 पे था ना वो, सॉरी अभी 300 होगा। डेढ़ सौ तो है। अब वो हमें कनेक्ट करना होगा उस पॉइंट को इसके साथ, ठीक है। तो ये तो चलो डायरेक्शन वैल्यू है, ये आएगा एक्सेस उसमें बढ़ेगा। ये जो मूवमेंट है ये सीधी सी बात है, मैक्स वॉक स्पीड 300 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू तो मुझे 1000 रखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि उससे ऊपर तो उसको जाना ही है। तो ग्रेजुअली वॉक वैल्यू जो है वो क्या है वो देखना होगा। वो अभी हमें कहाँ से मिल रही है, मैक्सिमम एक्सेस वैल्यू फॉर रेंज यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। नेम एक्सेस, और ये जो वेलोसिटी है, ओके, ये वेलोसिटी ये यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू हीरो एनो आउटपुट पोज। यहाँ पे सेट कर दिया मैंने ब्लेंड स्पेस की, एंड में ब्लूप्रिंट में इवेंट ग्राफ के अंदर हमने इसको सेट किया हुआ है वेलोसिटी लेंथ, और ये वेलोसिटी जो है ये किधर जाएगी, तो ये जानी चाहिए इधर। नहीं तो ये तो कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा है इसको, वो तो काम कर रहा है कि यहाँ से वेलोसिटी बराबर जा रही है उधर। डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 4। देखो प्ले नहीं जा रहा वहाँ पे, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा वो। देखते हैं कि कहाँ तक में वो रनिंग का इवेंट आता है, और या फिर वो ग्रेजुअली नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे कम होगा। तो हर बार डिवाइड करता जाएगा वो। हर बार डिवाइड करता जा रहा है तो एक वैल्यू आ रही है, कम होगा। तो हमें शुरुआत ही छोटे से करनी है।
ओके, ऐसा करते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। ठीक है, ये वैल्यू तो यहाँ से आ रही है गेट पॉन वेक्टर, और ओके रिटर्न वैल्यू पे कास्ट टू हीरो, हीरो की वेलोसिटी लो और इसको रिटर्न करो यहाँ पे। ठीक, आई होप देयर विल बी नो इशू। क्या चीज़, अच्छा ये ओवर द टाइम कास्ट होगा और ये यहाँ से यहाँ पे सेट हो जाएगा, राइट, नो इश्यूज विद दैट। और ठीक है, अब इसको मैं देख रहे हो अभी हल्का सा तेज हो जा रहा है, तो बहुत तेज है ना, तो वो हम स्पीड जो है वो क्या बोलते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी वो सिंक हो गया है। ये जो कोड मैंने किया था ना, इससे पहले वो एनिम ब्लूप्रिंट के ऊपर काम कर रहा था, तो एनिम ब्लूप्रिंट की वैल्यू तेज हो रही थी लेकिन ये अपनी स्पीड से चल रहा था। अब हमने दोनों को क्या है कंट्रोल वो कर दिए, तो अब क्या हो रहा है कि वो सीधा सीधा इसकी वेलोसिटी और कैरेक्टर एनिमेशन दोनों सिंक हो गया। तो अगर मुझे वॉक वाला चाहिए है ना, तो मुझे क्या करना होगा, एक सेपरेट बटन बतानी होगी एक्शन की कि कंट्रोल कर दूं तो मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 300 पे 150 पे सेट हो जाएगी, तो मैं शिफ्ट दबा के वॉक पे चल सकता हूँ। अगर मैं देना चाह रहा हूँ बटन के साथ, बट अगर मैं उसको ग्रेजुअली देना चाह रहा हूँ तो थोड़ा सा हम लोग को फिर सोचना पड़ेगा और फिर निकालेंगे। तो अभी तक इसको यहाँ तक कर लेते हैं, यहाँ तक कर स्विच बार लगाना है, जैसे ही मैंने रिलीज किया तो वापस से है ना पूरा सेट हो जाए, जैसा ओरिजिनल था वैसा हो जाए, और नहीं तो फिर यहाँ से वेलोसिटी लेती रहे। मैक्सिमम में ये दिक्कत है तो एग्जामों में है ना कि वो पोजीशन ऑफसेट कर देता है, तो उसको वो है। लेकिन इसका ना लूप है, इसमें ना लूप बनता है, अब ब्लेंड लूप बनता है ना, स्केल एनिमेशन, ठीक है। जीरो पे रख के, जीरो पे रखने के लिए उसमें ना 1 सेकेंड का एनिमेशन निकालो कैरेक्टर को, और एक बार अपनी फाइल लेके आओ तो मैं तुमको वहीं पे दिखा दूंगा, नहीं तो ऐसे बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। एक्चुअल में क्या है, एक ही जगह पे रखते, सारी की एक जगह लगा देते, फिर उसी जगह पे ऐसा वाला रखते हैं 25 फ्रेम पे, फिर एक की लगा देते हैं सब में, सारी चीज़ों में, फिर उसके बाद ये वाला लगाते हैं 15 या 12 के गैप में, फिर उसको भी की लगा देते हैं। तो अभी कैसा एनिमेशन आता है, ऐसा ऐसा। फिर इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, पासिंग पोज में ये वाले में की लगाते हैं, फिर उस तरफ में भी ये वाले में की लगाएंगे। पोजीशन डिस्प्लेस करना ही नहीं है, केवल की ब्लॉक एनिमेशन तैयार करना है ना, की ब्लॉकिंग करनी पड़ती है। और डायरेक्ट जो देते थे ना पेल्विस वगैरह ओपन करके, वो नहीं करना, बस ब्लैक ज्योमेट्री उसको ब्लॉक एनिमेशन से करना है। तो ठीक है, ये एनालिसिस जो है वो वेलोसिटी एनालिसिस पे बेस्ड रहे, और
ना इसका लूप रुकता है, मतलब एग्जामों की भी वो लूपिंग रुकती है। एनिमी ग्राफ क्या बोल रहा है यहाँ पे, रणवीर अभी डायमंड एक्सपोर्ट दिख रहा है, कैसा? मिक्समो से डायमंड रणवीर का एक्सपोर्ट उसकी वेबसाइट। अभी नन आई एम अवेयर ऑफ आउट, बट आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट, देखेंगे कि वो है कहाँ। तो यहाँ वेलोसिटी स्पीड जो है वो चेंज कर देंगे तो वो कैसे चल रहा है। ये जो वापस से आ रहा है ना, इसको ये ख़त्म होता है। पोस्ट ऑफ इनिशियल क्रिएट बाइंडिंग नहीं, ठीक है। ब्लेंड स्पेस के अंदर ही वेलोसिटी 600, स्टैंडिंग स्केल इज 0, स्ट्रेच ग्रिड टू फिट। यहीं पे एक ऑप्शन है मालूम। आई गेस विल हैव टू सी, क्योंकि वो लूप ऑप्शन रहता है, आई हैव सीन दैट, क्योंकि एग्जामों से लोगों ने डाला है उसके अंदर ज्योमेट्री, देयर माइट बी ऑप्शंस जिनमें इन्होंने यूज़ किया होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऑफसेट जो है वो कैसे मेंटेन होगा, विल सी, और देन विल गेट बैक टू फिक्स दिस वन। ओके, so that's it for today. Bye, take care. So we're almost there, हम लोग बस इंटरेक्टिविटी शुरू ही हो जाएगी, फिर गन वन वगैरह डालना शुरू कर देंगे। क्लॉथ एनिमेट कैसे करूँ? रीड करूँ? कैसे रीड करूँ? मेरे को उसमें सिमुलेशन देनी है, क्लॉथ सिमुलेशन देना है तो बट वो नहीं काम कर रहा। उसका इधर कैसे काम करेगा, बेक करके निकालना पड़ेगा ना तुम्हें। मैं इसमें बेक कर रहा हूँ तो वो अजीब सा ही हो जा रहा है, सीन हो रहा कुछ और ही निकल रहा है उधर से। कैसा क्लॉथ सिमुलेशन है? बिल्कुल प्रॉपर वाला चाहिए तो